Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This class for the class 12th, and we are learning reproductive health. In the reproductive health we are discussing a lot of things, that is also a general topic. Means so many information are there that the youth should know about those things. That's why I have started this session. And I told you that it is not only for the class 12th, but any student who is in the teenager stage, they can attend the class and they can get the information, so that they can just protect themselves from so many evils, and they can stand in the society with a lot of knowledge, so that they can help in the society to eradicate the society from so many evils and misconception. So let's start the class को start करते हैं. क्लास स्टार्ट करने के पहले, जैसे मैं डेली मैं यही करता हूँ कि आपको बहुत सारी एनर्जी देता हूँ और अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ. ठीक है, और आज भी देखो बहुत अच्छी लाइन में लेके आया हूँ एकदम. अगर जो लोग पढ़ने में मन नहीं लगा रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि दे आर वेटिंग फॉर अ टाइम, वो टाइम का वेट कर रहे होंगे कि व्हेन द मतलब दे विल गेट द एनवायरनमेंट एंड ऑल, तो उनके लिए बहुत अच्छी लाइन है. मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं. वट एवर टाइम यू हैव गॉट, जैसे इस टाइम लॉकडाउन का टाइम है, ये भी जो टाइम है ना, इसको अगर आप पेशेंस रखोगे, इसको सोचोगे, तो इट इज़ वेरी गुड टाइम. इसी को अच्छा बनाना है. अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा. ठीक है, मतलब हमें जहाँ पे जो भी टाइम हमें मिला है, उसको अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से, ठीक है, अपने वर्क से, ठीक है, अपनी थॉट से हमें उसको अच्छा बनाना है. ठीक है, सो अच्छा टाइम वही है जिसमें हम हैं. ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे डील कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं विद दिस मोटिवेशनल कोट. इस मोटिवेशनल कोट के साथ इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. For the strategy for to control the population, we were discussing about the different method, like as I told you about the natural method. These are the general methods. Then we discussed about the natural method. Then after that, what are the barrier method. In natural method I told you about the three topic, like as periodic abstinence, then withdrawal or coitus interruptus, and third one is the lactation amenorrhea. In the next part, in the barrier method, we discuss a lot of barrier method that prevent the meeting of the sperm with the ovum. Means actually they just prevent, they just stop the fertilization. They act as a barrier for the sperm and ovum to meet. Clear? So that's why it is known as barrier method. In the under the barrier method we discussed a lot of example. बहुत सारे example हमने देखे. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू, आई थिंक आई क्लियर यू एवरीथिंग. मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर किया यहाँ पे कि हाउ द डिवाइसेस कैन बी यूज्ड. कौन सी डिवाइस यूज़ करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होंगी, कौन सी नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड. अब हम नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे जा रहे हैं. वी हैव डिस्कस टू. One is a natural method, another one is a barrier method. Now we are going to discuss about the intrauterine devices. This is the third method which can be used to control the population. See the meaning, as the name suggests, IUD means intrauterine devices. There are so many devices, those are used to control the population, means to avoid the pregnancy, and that is fit in the uterine. नाम से ही पता लग रहा है यूटेरिन डिवाइस, तो इट इज़ यूज इन द केस ऑफ फीमेल, नॉट इन द मेल. मीन्स इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज आर नॉट देयर फॉर द मेल, दे आर ओनली फॉर द फीमेल. वो केवल फीमेल के लिए हैं. दीज डिवाइसेस कैन बी इंसर्टेड इन द यूटरस. यूटरस में इंसर्ट कर दी जाती हैं. ठीक है, विद द बाय द एक्सपर्ट्स एंड द बाय द एक्सपर्ट नर्स और द डॉक्टर. anybody, मतलब it is advisable that the female should not have these things with anyone. Means by anyone cannot insult these devices if the doctor and nurses are not expertise in their field. Clear? So they have to be care for that whenever they are going for the intrauterine devices, there should be a doctor or nurse, those are expertise in their field. Clear? So it is inserted in the uterus. ठीक है, and now see how what the devices are made up of. They are made up of a different thing that we will discuss further. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये डिवाइसेस किसकी बनी होती है. उसके पीछे एक प्लास्टिक की स्ट्रिंग लगा देते हैं. ठीक है, प्लास्टिक की स्ट्रिंग इसलिए लगा देते हैं जिससे वो फील होता है कि वो मतलब जो डिवाइस है वो फिट हो गई कि नहीं हो गई,
ठीक है, मतलब उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो कोई यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, अ प्लास्टिक स्ट्रिंग टाइड टू द एंड ऑफ द आईयूडी हैंग्स डाउन थ्रू द सर्विक्स इनटू द वेजाइना, तो वन कैन चेक द आईयूडी इज इन प्लेस बाय फीलिंग फॉर दिस स्ट्रिंग। तो उस स्ट्रिंग से पता लग जाता है कि वो फिट हो गई है कि नहीं हो गई, समझ में आया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आईयूडी। तो आई इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज़ आईयूडी, आईयूडीज़ क्या होती है। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आईयूडी। देखो आईयूडीज़ का जैसे बैरियर मेथड का मैंने बताया था कि दे प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ द स्पर्म विद द ओवम। आईयूडी 2 या 3 फंक्शन करेंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर इंसर्टेड इन द यूटेरस, क्लियर। सो दे विल मेक द यूटेरस अनसुटेबल, ठीक है, यूट्रस को अनसूटेबल कर देंगे, अनसूटेबल बना देंगे। अनसूटेबल कैसे बनाएंगी, फॉर द फर्टिलाइजेशन लार्ज ऑफ म्यूकस, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ द म्यूकस विल बी रिलीज। बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर म्यूकस रिलीज होगा तो ऐसी कंडीशन में जो स्पर्म है ना वो प्रॉपर स्विम नहीं कर पाएगा, मतलब वो यूट्रस को या वेजाइनल ट्रैक को क्या बना देंगे, अनसूटेबल बना देंगे। सेकेंड, दे विल किल द स्पर्म, किल स्पर्म। दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ केमिकल, उनके पास उनमें केमिकल्स कुछ लगे होते हैं, दोज एक्ट एज अ स्पर्मिसाइड, वो स्पर्मिसाइड की तरह बिहेव करते हैं, एंड दे विल किल द स्पर्म। तो बाई दीज 2 मेथड, मतलब दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ द आईयूडी, ये आईयूडी से प्रिंसिपल है कि दे विल मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन और फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। एंड सेकेंड वन, दे विल किल द स्पर्म, और स्पर्म को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो दीज आर द 2 प्रिंसिपल। लेट्स सी, अब आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ आईयूडीज़ में। देखो सबसे पहला है हार्मोनल आईयूडी, ठीक है, वेट हाँ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर आईयूडी, सबसे पहले कॉपर, ये सबसे कॉमन आईयूडी है, ठीक है। आपने सुना होगा कि कॉपर टी, मतलब इसका कॉमन लैंग्वेज जो में बुलाते हैं कॉपर टी, CUT, कॉपर टी, ठीक है। एक्चुअली ये टी शेप में होते हैं, ऐसे टी शेप में होते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब फ्रेम, इनका जो जितनी भी आईयूडीज़ होती है ना वो फ्रेम होती हैं, वो डिवाइस होती है, उनका एक फ्रेम होता है, उसी फ्रेम में हम केमिकल्स को लगा सकते हैं, उसी फ्रेम में हम हार्मोन्स के कुछ इंजेक्शंस या हार्मोन्स को हम इंड्यूस कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हार्मोन, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल विच वी आर अप्लाइंग इन द टी, मतलब दैट डिवाइस, उस डिवाइस में जो भी केमिकल हम अप्लाई कर रहे हैं उसी के बेसिस पे वो टाइप ऑफ डिवाइस हो जाती है। मतलब अगर हम आईयूडी पे, मतलब जो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हैं उस पर अगर हम कॉपर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, कॉपर आईयूडी पड़ जाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉपर आईयूडी। तो Cu7, CUT, ठीक है, ये दोनों तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा क्योंकि दोनों में Cu आ रहा है, मतलब कॉपर का आ रहा है, लेकिन ये नहीं याद होगा मल्टीलोड 375, ठीक है। तो मल्टीलोड 375, CUT और Cu7 दोनों, ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो कॉपर वायर लगा दिया जाता है, ठीक है, जो टी शेप है ना इसके ऊपर कॉपर वायर लगा देते हैं। अब कॉपर वायर लगाए तो कॉपर ही रिलीज़ करेगा। अब कॉपर क्या है, कॉपर इज़ मतलब आयन दैट किल द स्पर्म, वो स्पर्म को क्या करेगा, किल करेगा। कॉपर टॉक्सिक है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि आइदर दे विल किल द स्पर्म और दे विल मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे दो एक्शन लिख रखे हैं कि हाउ द कॉपर टी और कॉपर आईयूडी वर्क, कैसे वो वर्क करते हैं। तो कॉपर किल द स्पर्म एंड इट मेक द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब प्रोड्यूस दैट फ्लूइड, मतलब इतना ज़्यादा फ्लूइड सेक्रीट करेंगे तो जिसकी वजह से वो स्पर्म को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। मतलब क्या हो गया कि जैसे जो यूटेरस है, बहुत ध्यान से समझो, यूटेरस है या फैलोपियन ट्यूब है, व्हेन दे विल सेक्रीट द फ्लूइड, क्योंकि वहाँ पे डिवाइसेस को इंसर्ट कर दिया गया है तो फ्लूइड सेक्रीशन होगा। इस फ्लूइड में कॉपर होगा, ठीक है, और भी कुछ केमिकल्स होंगे, ये कॉपर और दोनों केमिकल, ये दोनों मिलके स्पर्म को क्या करेंगे, किल करेंगे। दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर कि जो भी फ्लूइड सेक्रीट होगा उसमें कॉपर आयन होगा और वो कॉपर आयन स्पर्म को क्या कर देगा, किल कर देगा। क्योंकि कॉपर आयन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, जो डिवाइस लगी हुई है उसमें कॉपर वायर का यूज़ किया गया है। समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द आईयूडी, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड डिवाइसेस इन द आईयूडी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉपर टी और कॉपर Cu7, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हार्मोनल आईयूडी। अब हार्मोनल आईयूडी समझ गए होगे कि ये दे विल सेक्रीट हार्मोन। अब कौन कौन से डिवाइसेस होती हैं, देखो ये एग्जांपल है,
प्रोजेस्टेजल्ड एंड LNG-20, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए हार्मोनल IUD के। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बाय डैमेजिंग और किलिंग द स्पर्म। ठीक है, या तो स्पर्म को डैमेज कर देंगे या तो किल कर देंगे। कैसे करेंगे, मेकिंग म्यूकस इन द सर्विक्स। अभी मैंने बताया था ना कि आपको कि सर्विक्स या वेजाइनल ट्रैक्ट में इतना ज़्यादा म्यूकस सेक्रीट होगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि स्पर्म जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगा, आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो बाय इन दिस वे द हार्मोनल IUD एक्ट, इस तरह से हार्मोनल IUD एक्ट करती हैं। वो हार्मोन, वहाँ पे जो हार्मोनल IUD है उनमें कुछ केमिकल्स, हार्मोनल केमिकल्स होते हैं, जब वो सेक्रीट होते हैं तो इतना ज़्यादा म्यूकस सेक्रीट करते हैं, और वो म्यूकस बहुत थिक भी होता है और स्टिकी भी होता है। उसकी वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ दैट केमिकल, बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड, द स्पर्म कैन नॉट मूव प्रॉपरली, और वो मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया हार्मोनल IUD। एक और होती है नॉन मेडिकेटेड, मतलब इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी आयन यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड। ये बहुत मतलब ट्रेडिशनल IUD थी जो अब बहुत कम यूज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले इसी का यूज़ होता था, लिप्स लूप। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे होती थी लूप की तरह, यही फ्रेमवर्क होती है, मतलब ऐसी डिवाइसेस होती हैं। एक्चुअली ऐसी डिवाइसेस जब बिना किसी केमिकल के या बिना किसी हार्मोन के फिट कर दी जाती हैं तो ये भी म्यूकस का सेक्रीशन कर सकती है। मतलब वो यूट्रस में इस तरह से कोई अगर जैसे माउथ में आपके अगर कोई पार्टिकल है तो आपके माउथ में सलाइवा ज़्यादा सेक्रीट होती रहती है। ठीक है, सेम एज उस स्किन में, यूट्रस की स्किन में अगर ये डिवाइस फिट हो गई तो वहाँ से म्यूकस का सेक्रीशन ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, और वो म्यूकस का सेक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से स्पर्म की मूवमेंट अफेक्टेड होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 तरह की IUD हमने पढ़ी, सबसे पहले कॉपर, सेकेंड वन इज़ हार्मोनल, और थर्ड वन पढ़ी कि नॉन मेडिकेटेड। तीनों के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने तीनों के एक्शन आपको बता दिए कि तीनों के एक्शन एक्चुअली कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो एडवांटेजेस क्या होंगी। एडवांटेजेस बहुत सारी हैं। पहला है ऑफर प्रोटेक्शन फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, मतलब अगर किसी IUD को, एक्चुअली किसी IUD को अगर इंसर्ट कर दिया जाए तो दे कैन बी इफ़ेक्टिव, ये इफ़ेक्टिव रह सकती हैं फॉर 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स। ठीक है, अगर कोई भी IUD अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो दे विल बी इफ़ेक्टिव, मतलब दे विल बी इफ़ेक्टिव फॉर 5 to 10 ईयर, मतलब वो डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई 5 ईयर तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहता है तो 5 ईयर वाली डिवाइस लगा ले, 10 ईयर्स का चाहता है तो 10 ईयर की भी लगा सकता है। समझ में आया? मतलब लॉन्ग, मतलब काफ़ी इनकी ड्यूरेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फॉर मेनी ईयर्स। अब अगर इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस का यूज़ हो गया तो कोई नो नीड टू टेक द पिल, नो नीड फॉर एनी कॉन्ट्रासेप्शन, किसी और कॉन्ट्रासेप्शन की नीड नहीं है। इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार ये डिवाइसेस लग रही है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और वेरी हेल्पफुल टू डिले द प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी को डिले करना है या स्पेस रखना है 2 चाइल्ड के बीच में, ठीक है, जैसे अगर वीमेन है और उसका एक चाइल्ड है, अगर वो चाहती है कि देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन द सेकेंड चाइल्ड, ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड है और सेकेंड चाइल्ड है, उसमें काफ़ी स्पेस होना चाहिए। एंड देयर शुड नॉट बी इंटरप्शन इन द सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल ड्राइव में देयर शुड नॉट बी एनी, मतलब उसमें स्टॉप नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल ड्राइव स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई दे कैन यूज़ द IUD, इसलिए वो क्या यूज़ कर सकते हैं, IUD यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके देखो डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले आपको पता है, आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि एक्सेप्ट ऑफ द बैरियर मेथड, एंड इन द बैरियर मेथड ओनली द condoms आर देयर, दोज कैन प्रिवेंट फ्रॉम द STD, otherwise any devices are not there, those can prevent from the STDs, so it will not prevent from the STDs। साइड इफ़ेक्ट्स हो ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल है या कोई भी केमिकल अगर बॉडी में जा रहा है तो कन्फर्म है, हमेशा नहीं बट इट कैन, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एंड कैन परफोरेट द यूटरिन वॉल, क्योंकि यूट्रस में इसको फिट किया जा रहा है तो हो सकता है परफोरेट, मतलब क्या कर दे, पोर कर दे, होल कर दे यूट्रस की वॉल में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी, ये सारी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं IUDs के। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया तीसरा, थर्ड मेथड हो गया कॉन्ट्रासेप्शन का, कि हाउ द प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड। क्लियर है? ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर योर डाउट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इट इज़ आल्सो अ वेरी मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड, एक्सेप्टेड डिवाइसेस। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड डिवाइसेस है, बिकॉज दे मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड दे आर ईजिली हैंडल्ड, इनको बहुत ईजिली हैंडल कर सकती हैं फीमेल। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स देर आर सो मेनी टैबलेट्स आर फॉर्म, बहुत सारी टैबलेट्स बनाई गई हैं। ठीक है, दोज टैबलेट हैव द हार्मोनल कंपोजिशन, उनके पास हार्मोनल कॉम्बिनेशन होता है।
व्हेन दे आर टेकन, ठीक है, दे रिलीज दोज हार्मोन कॉम्बिनेशन इन द बॉडी, इन द ब्लड, एंड बिकॉज ऑफ द दोज हार्मोनल secretion in the body, there is not formation of ovum, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता या इम्प्लांटेशन नहीं होता। समझ में आए, या तो ओवम रिलीज़ नहीं होगा और या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दिस इज़ अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, इसीलिए इसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हार्मोन का, ये देखो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा केवल, या तो प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, और ये टैबलेट के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब देखो पिल्स का जो मतलब इनटेक है वो कैसे होगा, यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से बता देता हूँ। वेट, ये देखो यहाँ से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि जैसे 1 to 5 डेज़ है, मतलब एनी फीमेल नोज़ द हाउ व्हेन द ब्लीडिंग इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट। ठीक है, अब सपोज़ ब्लीडिंग स्टॉप होगी तो यहाँ से वो उसने पिल लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब पिल लेना यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट डे सेकंड डे, मतलब डेली शी इज़ टेकिंग द पिल डेली। अब वो डेली पिल ले रही है अप टू 21 और 22 डेज़, 21-22 डेज़ तक शी विल टेक द पिल, वो पिल लेगी। ओरल मतलब ओरल जो पिल है उसको इनटेक करेगी, कब से, आफ्टर द ब्लीडिंग फेज़, ब्लीडिंग फेज़ के बाद से स्टार्ट करेगी, और कब तक लेगी, 21 डेज़ तक। 21 डेज़ तक क्या होगा कि ओवा का या तो फॉर्मेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो ओव्यूलेशन नहीं होगा। 21 डेज़ के बाद शी हैज़ टू स्टॉप, उसको बंद करना पड़ेगा उस पिल को लेना, सो दैट द एंडोमेट्रियम बॉल कैन बी रप्चर्ड, मतलब अगेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन टेक प्लेस, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो कैन टेक प्लेस। उसको 7 डेज़ का गैप देना पड़ेगा, मतलब द पिल्स हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम 1 to 21 डेज़, और वो 1 डे कब स्टार्ट होगा ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, अप टू 21 डेज़। 21 डेज़ के बाद देयर शुड बी अ गैप फॉर 7 डेज़, 7 डेज़ का गैप होगा। ठीक है, उसी 7 डेज़ में क्या होगा, देयर विल बी अ ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, एंड अगेन द फीमेल विल स्टार्ट, और फिर से फीमेल क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी टेकिंग द पिल। ठीक है, तो ये मैंने आपको एकदम से क्लियर कर दिया कि एक्चुअली ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज़। देखो 7 डेज़ का गैप कब करना है, इसी में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन, मतलब दैट विल बी द ब्लीडिंग फेज। जैसे ही गैप होगा ब्लीडिंग फेज आएगी, ब्लीडिंग फेज जैसे ही स्टॉप होती है अगेन द फीमेल कैन स्टार्ट। तो ये ट्रेडिशनल जो पिल थी, मतलब पहले की जो पिल थी वो इस तरह से लेती थी। अब जो है कुछ और भी पिल्स का प्रोडक्शन हुआ है, कुछ और भी पिल्स जो है बनी है, हमारी जो साइंटिफिक जो रिसर्च है उसने और भी पिल बनाई हैं जिसको डेली लेने की नीड नहीं है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, देखो मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन में दे विल इनहिबिट, मैंने आपको बताया 2 प्रोसेस को वो इनहिबिट करेंगे। सबसे पहला ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे, और सेकंड वन इज़ इम्प्लांटेशन। ठीक है, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म, और सर्विकल म्यूकस बढ़ा देंगे जिसकी वजह से देयर विल बी नो एंट्री ऑफ द स्पर्म। क्लियर हो गया, मतलब लेकिन 2 ज़्यादा मेन है, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन। अब देखो एक पिल है दैट इज़ नोन एज सहेली। ठीक है, बड़ी कॉमन पिल है, एंड दिस इज़ डेवलप्ड बाय द CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये लखनऊ में है जहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स की रिसर्च होती है और ड्रग बनाई जाती है। तो सहेली इज़ आल्सो अ ड्रग, और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब देखो इसकी एडवांटेज क्या है, जो ट्रेडिशनल पिल थी, इट इज़ अ वंस अ वीक पिल। ये देखो वंस अ वीक पिल। ठीक है, मतलब इन अ वीक ओनली 1 टैबलेट हैज़ टू बी टेकन, एंड इट इज़ नॉन स्टेरॉइडल। इसका जो प्रिपरेशन होता है वो नॉन स्टेरॉइडल होता है, स्टेरॉइड्स इसमें यूज़ नहीं होते हैं, तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो सहेली क्या है, सहेली के एडवांटेज क्या है पिल्स पे, ट्रेडिशनल पिल्स पे, कि अभी आपने देखा कि ट्रेडिशनल पिल हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम 1 to 21 डेज़ डेली, मतलब इट शुड नॉट बी मिस्ड, उसको मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट सहेली का क्या है, वंस एक बार एक वीक में 1 टैबलेट हो गई, एंड दैट विल बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और नॉन स्टेरॉइडल भी है, इसलिए बॉडी में जो स्टेरॉइडल चेंजेस आएंगे वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अदर जो टैबलेट्स होती है उनमें स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, देखो पिल्स की एक डिसएडवांटेज तो है कि प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ईजिली हैंडल्ड है, मतलब अपने आप से ईजिली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेजेस क्या है कि इफ़ सपोज द फीमेल फॉरगेट टू टेक द पिल, अगर वो भूल गई, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन दैट
विल नॉट बी इफ़ेक्टिव, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो अगर फीमेल से मतलब अगर हम देखें तो फीमेल, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फीमेल, फीमेल को ये रिक्वायरमेंट होगी कि कुछ ऐसा हो जाए जो उसी तरह बिहेव करे लेकिन उसको लेना ना पड़े, मतलब उसको इनटेक ना करना पड़े, उसका बिहेवियर एकदम सेम हो, लेकिन नीड ना पड़े कि उसको याद करने की पिल को भी इनटेक करना है, मतलब देर इज़ नो नीड टू रिमेंबर द साइकिल ऑफ द पिल। ठीक है, समझ में आया? मतलब पिल के एडवांटेज क्या है, तो प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि उनको याद होना पड़ता है, मतलब उनकी साइकिल को अच्छे से उसको फॉलो करना पड़ता है, उनके रूटीन को। ठीक है, अब फीमेल से अगर पूछा जाए कि इसके ऊपर मतलब व्हाट डू यू वांट, तो उनका ये आंसर होगा कि वी वांट अ डिवाइस विच इज़ नॉट टू बी रिमेंबर, जिसको हमें याद ना करना पड़े, मतलब जिसको हमें फॉलो बहुत ज़्यादा ना करना पड़े, लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन किसकी तरह हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह हो। ठीक है, ईजी होगा। तो देखो उसी के लिए एक और मेथड है जिसको बोलते हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। कुछ इंजेक्शन्स बनाए गए हैं और इम्प्लांट्स ऐसे 6 मैच स्टिक की तरह होते हैं, 6 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक की तरह होते हैं 6। ठीक है, इनको जो है स्किन में इम्प्लांट कर देते हैं, मतलब इनको सर्जरी के थ्रू एल्बो में मोस्टली जहाँ पे मतलब एल्बो की जो स्किन होती है उसमें इम्प्लांट कर देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, इम्प्लांट है। इम्प्लांट मतलब कहीं पे उसको क्या कर देना, इंसर्ट कर देना। ठीक है, अब जब इम्प्लांट कर देंगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन एकदम ओरल पिल की तरह ही है, प्रोजेस्टोजेंस, ठीक है, या कॉम्बिनेशन होगा एस्ट्रोजन का, मतलब जो कॉम्बिनेशन है, जो मतलब केमिकल है वो एकदम सेम है किसकी तरह, पिल की तरह। ठीक है, अब अगर इम्प्लांट कर दिया तो बताओ ज़रूरत होगी मतलब फॉलो करने की, एक रूटीन फॉलो करने की, नहीं, क्योंकि ये तो फिट कर दी गई। अब जब फिट हो गई तो इट विल सेक्रीट द केमिकल, वो हार्मोन को सेक्रीट करेगी। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होगा पिल की तरह। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगी क्योंकि नो नीड टू रिमेंबर द साइकिल ऑफ अ पिल। ठीक है, पिल की साइकिल को याद करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंजेक्शन एंड और इम्प्लांट्स ओवर द ओरल पिल, ओवर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? यू कैन राइट डाउन, आप इसको लिख सकते हो बहुत ईजिली, ये लास्ट में मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो हार्मोनल कॉम्बिनेशन है वो सेम होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड, अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट पे आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। बस इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की नीड क्या पड़ती है, व्हेन देयर इज़ अ नीड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। देखो इमरजेंसी मतलब होता ही है इमरजेंसी कंडीशन, मतलब आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे, दैट इज़ नोन एज इमरजेंसी, वो इमरजेंसी है। ठीक है, अब पहले से प्रिपेयर का मतलब क्या है कि सपोज द कपल परफॉर्म सेक्स एंड द कपल डिड नॉट यूज़ द एनी कॉन्ट्रासेप्शन, उसने कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया। ठीक है, और दे फॉरगेट टू टेक द एनी मतलब एनी मेथड, दे फॉरगेट टू टेक एनी प्रोटेक्शन, उन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया, एंड दे डोंट वांट द चाइल्ड, मतलब दे डोंट वांट टू बी दे डोंट वांट प्रेगनेंसी, उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। समझ में आया नहीं है? कोई कपल है, उसने परफॉर्म किया सेक्स, ठीक है, अब वो अनप्रोटेक्टेड था, दे हैवंट टेकन एनी प्रोटेक्शन और दे हैव फॉरगेटन, और द कॉन्ट्रासेप्टिव फेल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाता है, जैसे सपोज दे आर यूजिंग कॉन्डोम्स, ठीक है, एंड कॉन्डोम्स टॉर्न हो गया, फट गया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मतलब दे विल फील दैट इट वाज अ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, एट दिस कंडीशन बिकॉज दे डोंट वांट टू कंसीव नहीं करना चाहती फीमेल, दैट्स वाई देर इज़ अ नीड फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इसीलिए वहाँ पे नेक्स्ट डे क्या लेने की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का एक ड्यूरेशन होता है 72 आवर्स तक। ठीक है, मीन्स 3 डेज़ तक, up to 3 days or up to 72 hours. If there is a application of the emergency contraception, then there will be no chance of the pregnancy के chances नहीं होंगे। ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर हो गया कि इनकी नीड कब होती है, मॉर्निंग, इसलिए इनको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल। ठीक है, एक मैनकाइंड जो कंपनी है उसने एक टैबलेट भी निकाली है जिसका होता है 72 आवर। ठीक है, आई पिल, इसका नाम होता है आई पिल, अनवांटेड 72। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करता है, ये रिमूव करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को मतलब वहाँ पे हेल्प करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने में।
ठीक है। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन। अभी मैंने बताया कि क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्वाइटस के बाद लिया जा रहा है, ठीक है, और वो सेक्स कैसा था, अनप्रोटेक्टेड था। इफेक्टिव कब तक होता है, 72 आवर्स तक होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसमें होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो जो प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है, या तो वो ले लिया जाए या तो आईयूडी की भी हेल्प ले सकते हैं अप टू 72 आवर। विद इन 72 आवर में अगर इनमें से कोई भी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है तो दे कैन मतलब दे कैन हेल्पफुल इन दिस पार्ट, वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। और हाईली रिकमेंडेड होता है जब वेन एवर एनी रेप विक्टिम इज़ देयर एंड व्हेन द रेप विक्टिम गोज़ टू द हॉस्पिटल, द डॉक्टर रिकमेंड दीज टैबलेट्स। ये मेथड जो है सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, उनको किट प्रोवाइड की जाती है सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी। क्लियर हो गया। तो दिस इज़ अबाउट द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। या तो आईयूडी का यूज़ कर लेंगे या तो देयर विल बी अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं विद इन द 72 आवर्स। ये कंपनीज़ ने अब इसको टैबलेट फॉर्म में भी ले आए हैं, जैसे मैंने अभी बताया आईपीएल के बारे में, ठीक है, जो है प्रोटेक्ट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे मेथड आज पढ़ लिए। अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, अब इसमें हमें 1-2 मेथड और पढ़ने हैं। देन वी विल गो हेड अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर, आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। क्लियर है। एंड यू शुड हैव द नॉलेज सो दैट यू कैन अवेयर अदर्स आल्सो, आप दूसरों को भी अवेयर कर सकते हो, ठीक है। सो इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करो और मैक्सिमम शेयर करो ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी डिसेमिनेट हो आपके थ्रू, ठीक है। तो आई एम एंडिंग द सेशन, इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ एंड होप सो दैट यू आर डूइंग वेल। प्लीज़ यूटिलाइज द टाइम, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।